अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जदीद तर्ज पर तैयार किए गए 75 रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। हुकाम के मुताबिक इन स्टेशनों को जदीद सहूलियात, बेहतर मुसाफिर खिदमात और मुकामी सकाफत व विरसे की अक्कासी को मद्देनजर रखते हुए असर नौ तरक्की दी गई। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मकसद मुल्क भर के रेलवे स्टेशनों को मरहलावार जदीद बनाना, मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करना और रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is going to inaugurate 75 railway stations which have been developed under Amrit Bharat station scheme on 17th July. These all stations under the legendary leadership of Honorable Prime Minister ji Shri Narendra Modi garu and Honorable Union Minister of Railways Shri Ashwini Vaishnav ji are trying to develop them under world-class passenger facilities. Under this scheme, around 73 stations of Andhra Pradesh have been already selected, in which 3 stations have completed all the works which are ready to be dedicated to the nation by the Honorable Prime Minister. They are Rayanpadu in the Krishna district, Mangalagiri in the Guntur district, Kambam in the Markapuram district. The works to the tune of 25 crore were completed in the station of Rayanpadu, where we have developed the platform surfaces, new waiting halls were built, cover over platform was built, and also lifts were provided to the existing footover bridges. And in the station of Mangalagiri in the Guntur district, a new second entry has been developed with the tune of 12 crore rupees expenditure, where we also have developed parking facilities, cover over platforms, platform surfaces were improved, 2 lifts were provided in the existing footover bridges, thereby making the Mangalagiri station more accessible and more comfortable for the passengers. In the Guntur division, Kambam railway station, which falls under the jurisdiction of Markapuram district, was also developed under Amrit Bharat station scheme with the works to the tune of around 11 crore rupees, where platform surface was improved, toilet block was improved, waiting halls were improved, circulating area and parking facilities were all improved. The entire outlook of the station was brought under world-class facilities. So we request all the public to take note of this and also to start accessing them after. वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने कहा, भारत और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात मज़ीद बुलंदियों को छूने के लिए तैयार। उन्होंने कहा, आलमी मईशत को इस वक्त कई बड़े चैलेंजेस का सामना, जिनमें महदूद वसाइल पर इन्हिसार एक अहम मसला। एस जयशंकर के मुताबिक दुनिया भर में मुतअद्दिद ऐसी बेज़ाब्तगियाँ और रुकावटें पैदा हो रही जो आलमी निज़ाम और इक़्तिसादी ढांचे को मुतासिर कर रही। The international economy, which is the larger context in which we are meeting, today faces a number of critical and interlinked challenges. There are concerns about over-dependence on limited sources of production, as well as volatility of market access. These solutions lie in de-risking through more diversified production and ensuring predictable markets. When we speak about a multipolar world, it is essential to recognize the economic and technological value of multipolarity. Strengthening resilience of supply chains is today clearly a global priority. Then there is the question of establishing trusted partnerships. We are witnessing multiple distortions that reflect non-market practices, subsidies, and gaming the global trading system. As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains. The third aspect of our discussions relates to exchanges and mobility of talents and skills, as you've just heard again. This is invaluable when it comes to development of technology. To a considerable degree, there is a trust factor at work here as well. Such mobility is strengthened by joint research, academic projects, and other forms of collaboration. Deep tech startup partnerships hold great promise in this regard.
We will be starting negotiations for India's association with the Horizon Europe program. केरला के मल्लापुरम जिले के प्रंथलमन्ना इलाके में पुलिस ने एक शख्स को 405 ग्राम MDMA मंशियात के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इतला की बुनियाद पर की गई, जिसके दौरान मुलजिम के कब्जे से बड़ी मकदार में MDMA बरामद। हुकाम ने मंशियात जब्त करके मुलजिम के खिलाफ मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि इस बात की भी तहकीकात की जा रही कि मंशियात कहाँ से लाई गई और इस नेटवर्क में मजीद कौन शामिल है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने इंदौर से अबुज़हबी के लिए पहली बराह रास्त परवाज़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा, इस नई बैनुल-अक़वामी परवाज़ से मध्य प्रदेश और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तिजारत, सयाहत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा, जबकि बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीयों और मुसाफिरों को भी बराह रास्त सफ़री सहूलियात हासिल होंगी। प्रज्वलन के साथ लिखी जा रही है। हम सबके अभिमान का, हम सबके सुनहरे मार्ग का प्रशस्त करता यह दीपक हमारे अपने राज्य में चलाते हुए राज्य से बाकी राज्यों के साथ और आज अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की दृष्टि से हमारी परिवहन नीति के बलबूते पर भारत से, मध्य प्रदेश से अबू धाबी की नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ हुई है। ये माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की सबसे तेज गति से चलने वाली योजना का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए सरकार के माध्यम से हमारी योजना से ये विमान उड़ाए जा रहे हैं, जो यात्रियों को भी आवागमन की सुविधा देंगे, उनके आधे समय की बचत करेंगे और आर्थिक रूप से भी हम अपने राज्य के अंदर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इसका खर्च वहन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। JDS के रहनुमा निखिल कुमारस्वामी ने कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिवकुमार के बेदादी टाउनशिप मंसूबे से मुतल्लिक़ बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा, रियासती हुकूमत के पास नामजद रेड जोन को ख़त्म करने के इख्तियारात मौजूद। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद तो फिर वज़ीर आला को साबिक़ा हुकूमत की गलतियों या फैसलों का बोझ क्यों उठाना चाहिए। ಈಗ ತಾನೇ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಬಂದು ಆಸ್ಕರ್ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ಗಾಡಿಲಿ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿವ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, GBD ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೇ 3 ಊರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಯಾಕೆ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ? 3 ವಿಲೇಜಸ್ 3 ಊರುಗಳ ಫೈನಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿವ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ GBD ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಿಮ ಸೂಚನೆಯನ್ನ 3 ಊರಿದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ? 3 ಊರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. मरकजी वज़ारत तिजारत पीयूष गोयल ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुजवज़ा आज़ाद तिजारती मुआहदे को मुनसिफाना, मुतवाज़न और दोनों फरीकों के लिए फ़ायदेमंद करार दिया। TTC इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, भारत और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के लिए एक तारीख़ी साल है, क्योंकि दोनों फरीकों ने तमाम मुआहदों की मां करार दिए जाने वाले अहम मुआहदे को हतमी शक्ल दी। पीयूष गोयल ने कहा, दोनों जानिब ने अपनी तरक्याती शराकत दारी के अज़म का इआदा किया। Truly a pleasure to be back in Brussels for the 3rd TTC ministerial meeting. This is a historical year in the ties between the EU and India. We concluded the mother of all trade deals, as Her Excellency Ms. von der Leyen called the EU-India Free Trade Agreement, and the events around the Republic Day celebrations in India, where we had Her Excellency Ms. von der Leyen, His Excellency Mr. Costa in India, were truly memorable. This free trade agreement is fair, equitable and balanced. Truly a win-win agreement for EU, businesses in EU, India, businesses and the people of India. The partnership between EU and India has come of age. Prime Minister Modi termed it a partnership for global good. Today's discussions reaffirmed our shared vision for an innovation-driven, trusted and future-ready growth partnership. In fact, the TTC today has become an important pillar
of our engagement. The Working Group 3, which deals with matters around trade, has made steady and tangible progress. We have concluded a work program on foreign direct investment. दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने एक नौज़ायदा बच्चे के फेफड़े की नायाब खराबी के कामयाब ऑपरेशन के जरिए बच्चों की सर्जरी के शोबे में एक अहम संग मील उब्बर किया है। डॉक्टरों के मुताबिक शेरखार बच्चे के दाएं फेफड़े की सेगमेंटेक्टॉमी यानी फेफड़े के एक मखसूस हिस्से को निकालने की पेचीदा सर्जरी की गई, जो इस उम्र के बच्चों में इंतहाई नायाब समझी जाती है। मेरे बच्चे को लंग्स में सॉलिड सिस्टिक बताया था डॉक्टरों ने। लेवल 2 में मुझे पता चला था, तो वहाँ से मुझे यहाँ एम्स के लिए रेफ़र किया था, तब मैं यहाँ आई थी। तो डिलीवरी तो मैंने सफदरजंग में कराई, लेकिन मैं वहाँ सफदरजंग वालों ने मुझे अभी तो आगे ही भगाते रहते, फिर मैंने एम्स में आया दिखाया, फिर इन्होंने डेट दिया था मुझे सर्जरी के लिए। अभी तो हो गई मेरे बच्चे की सर्जरी, नहीं तो अभी तो टलता ही रहता, पता नहीं कब होती सर्जरी। अब बच्चा आपका ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे एम्स के डॉक्टरों ने जिन्होंने इतनी अच्छे से सफलतापूर्वक सर्जरी की है आपके बच्चे की? मैं तो कहूँगी एम्स के डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर हैं। इंडिया के जीवन दान मिला है बच्चे जी, बच्चे को नया जीवन दान ही मिला है मेरे बच्चे को एकदम। कितना डर था आपके मन में सर्जरी से पहले? डर तो काफ़ी था, डर तो यहाँ तक था कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे को। लेकिन भरोसा था डॉक्टर जी, डॉक्टर ने जैसे बताया था कि कुछ भी हो सकता है बच्चे को सही सलामत पाया मैंने, तब चैन आया मुझे। तो बच्चे को तकलीफ़ थी सीपैम जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ये पैदाइशी नुक्स होता है कि फेफड़े के एक हिस्से के अंदर ठीक से बना नहीं होता, और उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसका ऑपरेशन ना करें हम टाइम से तो आगे चल के एक तो ऑपरेशन कठिन हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत आगे चल के ट्यूमर का भी डाउट रहता है। तो इसलिए इसका ऑपरेशन ज़रूरी होता है। और इस बच्चे के दुर्भाग्यवश दोनों फेफड़ों के अंदर ये प्रॉब्लम थी, तो इसलिए इसका हमने फ़िलहाल राइट साइड का ऑपरेशन किया है। कुछ टाइम के बाद हम लेफ़्ट साइड का करेंगे। तो बीमारी बहुत जटिल थी और बच्चा की उम्र मात्र 4 महीने थी। बच्चा आप लोगों के पास कब आया था? कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? बच्चा बुरारी का रहने वाला है, 4 महीने का लड़का है एक, और हमारे पास ये अंदाज़न 1 महीने पहले आया था। तो हमने इसका CT स्कैन स्टडी वडी किया और हमको जब पता चला कि दोनों तरफ है, तो अब यही प्रॉब्लम है इतने छोटे बच्चे के अंदर दोनों तरफ के लंग का बड़ा हिस्सा निकाल देना। एक बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम है, बच्चे को जीना है, बड़ा होना है, खेलना है, कूदना है। तो ये डिस्कशन हुआ कि मुश्किल तो है, लेकिन जैसे लंग के भी बहुत छोटे छोटे भाग होते हैं अंदर, अगर हम फेफड़े के अंदर पूरा घुस जाएं, लेकिन उस भाग की सर्जरी बहुत कठिन होती है क्योंकि उसकी जो नसें वसें होती हैं वो फेफड़ों के अंदर काफ़ी दबी हुई होती हैं। तो ऐसे केसेस बच्चों में बहुत कम हिंदुस्तान में किसी भी उम्र को देख लें दूरबीन के द्वारा किसी ने किए हैं। लेकिन इस 4 महीने के बच्चे में हमने जो हिस्से निकाले हैं वो हिस्से भी काफ़ी सर्जरी के माध्यम से, मतलब सर्जरी में भी बहुत जटिल हिस्से माने जाते हैं, ऑपरेशन माने जाते हैं कि इस हिस्से को निकाल देना। तो हमने दूरबीन से मात्र 4 महीने के बच्चे के अंदर फेफड़े के छोटे वही हिस्से निकाले हैं जहाँ पे इसको बीमारी थी, और सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रही। सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आज बच्चे की हम छुट्टी कर रहे हैं। तो 4 महीने का ये बच्चा जो था, इसकी पैदाइशी नुक्स थी फेफड़ों में और फेफड़े के हिस्से में थी और दोनों तरफ थी। तो एक तरफ राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में दोनों थे, तो इसके कारण ये बच्चा बीमार था। ये जो नुक्स होता है सीपैम बोलते हैं इसको, और इसका ऑपरेशन ही इलाज होता है, नहीं तो ये बढ़ता जाता है, दिक्कत करता जाता है। ऑपरेशन में ज़्यादातर फेफड़ों का एक हिस्सा निकालना पड़ता है। नॉर्मली फेफड़े जो होते हैं वो लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे राइट साइड में 3 लोब होते हैं, लेफ़्ट में 2 लोब होते हैं। लोब को पूरा निकालना पड़ता है, मगर ज़रूरी नहीं है निकालना। अगर लोब का भी एक छोटा सा हिस्सा इन्वॉल्व है तो उसको भी निकाला जा सकता है। तो इसमें स्पेशल चीज़ ये हुई इतने छोटे बच्चे में, राइट साइड में एक लोब के कुछ सेगमेंट्स को निकाला है खाली जो इन्वॉल्व थे, तो बाकी पूरा लंग जो नॉर्मल है वो बचाया जा सकता है, और बच्चा बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो इतने छोटे बच्चे में दूरबीन के उससे
जरिए से ये ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत कम रिपोर्टेड है इतने छोटे बच्चे में। बड़ों में तो होता है बट छोटे बच्चों में नहीं होता है। सर कितना जटिल केस था आप लोगों के लिए, सिर्फ बच्चा 4 महीने का? जटिल तो था, पूरे सब मिला के एनेस्थीसिया देखिए, सर्जरी देखिए, सब तरफ से जटिल था। एनेस्थीसिया वालों की भी मुश्किल थी, सर्जरी वालों की भी मुश्किल थी, मगर एज अ टीम वर्क दोनों मिलके सर्जरी एनेस्थीसिया सब मिलके जो है वो सक्सेसफुली कर सके। तो मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने कहा, पार्टी की 21 जुलाई की सालाना रैली हर हाल में मुनक़िद होगी, चाहे इसके लिए स्टेज या माइक की सहूलत भी मौजूद ना हो। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी भी रुकावट के बावजूद पार्टी कारकुनों का हौसला बुलंद है और रैली अपने मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक मुनक़िद की जाएगी। उन्होंने कारकुनों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील करते हुए कहा, यह इज्तिमा तृणमूल कांग्रेस के अज़म और अवामी हिमायत का मजहर है। आज के 21 जुलाई स्थान জায়গা সময় আবার আপনাদের একবার জানাচ্ছি, মাননীয় আদালতের রায়, এই সরকার আমাদের পারমিশন দেয়নি, মাননীয় আদালতের রায়ে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে 11টা থেকে জমায়েত হবেন। সভা আমরা 3টে পর্যন্ত চালাবো। শহীদ পরিবারদেরও বলবো দয়া করে আসবেন। আমি জানি এরা হয়তো ডেকোরেটরকে ভয় দেখাবে, মাইক ম্যানকে ভয় দেখাবে, আমি বলবো এটা না করতে। প্রশাসন যেন নিরপেক্ষভাবে কাজ করেন, এটুকু আমাদের অনুরোধ থাকবে। আর তারপরেও যদি মনে করেন এটাও করবেন, তাহলে জেনে রাখবেন আমরা কিন্তু খালি গলাতেও বক্তৃতা দিতে পারি, তার আয়োজনও আমরা করে রাখবো। দরকার হলে রিকশায় দাঁড়িয়েও মিটিং হবে, ঠেলা গাড়িতে দাঁড়িয়েও মিটিং হবে, হকারদের ভ্যানে দাঁড়িয়েও মিটিং হবে। মিটিং আমরা যখন বলেছি করব এবং করব, এবং আগের দিন আমি নিজে গিয়ে জায়গা দেখতে যাব, এবং প্রতিবার আমি 20 জুলাই সন্ধ্যেবেলায় দেখতে যাই, সেরকম দেখতে যাব। আশা করি পুলিশ সহযোগিতা করবেন, আর ওখানে যেন বিজেপির লুম্পেনরা বা বিজেপির সেটিং পার্টিরা কোনো রকম আমাদের শান্ত মিটিংকে অশান্ত করতে না পারে, এর দায়িত্ব প্রশাসনকে নিতে হবে। আগাম অনুরোধ করছি, তার কারণ আগের দিন আমরা দেখেছি আপনারা কি অসভ্যতামিটা করিয়েছেন বিজেপিকে দিয়ে, রাস্তা ব্যারিকেড করে সকাল 6টা থেকে। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में मानसून की नाकामी के बाइस परेशान किसानों ने बारिश की दुआ के लिए रिवायती मजहबी रसूमात अदा की। किसानों ने अच्छी बारिश की उम्मीद में इज्तिमाई दुआओं और मकामी रिवायत के मुताबिक खसूसी इबादत का एहतमाम किया ताकि खुशकसाली से निजात मिल सके। इलाके में मुनासिब बारिश न होने के बाइस फसलें मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक नौबिहाता खातून की मुबैना तौर पर जहेज के मुतालबात के बाइस कत्ल के बाद ससुराल के अहाते में लाश दफन करने का मामला सामने आया। मुतवफ़ा की शिनाख्त मुफीदन निशा के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक खातून की मौत मुश्तबा हालत में हुई और मामले की हर पहलू से तहकीकात जारी। पुलिस ने शौहर शमशेर अहमद को हिरासत में लिया। इसके अलावा ख़ानदान के दीगर अफराद जिनमें अस्सी गला और खुशबू निशा शामिल हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई इतलात में जहेज के मुतालिबात का इल्ज़ाम सामने आया। हमारे लड़के को मार के दफनिया दिया था। कौन आपको फोन किया था? वो शमशेर फोन किया था। ये शमशेर कौन है? वो दामाद था मेरा। क्या उसने बताया?
उसने बताया मैं उसको मार के मैं घर में दफनिया दिया था। किसको दफनाया? मेरे लड़की को। आपकी लड़की का क्या नाम था? मफीदुन्निसा। कब शादी हुई, कैसे शादी हुई? 1 तारीख की हुई थी शादी, 1.5 महीना से 1 महीना हुआ। डुमरियागंज पर श्रीमती सफीदुन्निसा निवासी दसहवा थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर ने सूचना दिया कि मैं अपनी लड़की मफीदुन्निसा की शादी 1/6/2026 को शमशेर अहमद निवासी चकमझारी थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के साथ किया था। शादी के बाद से ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर के हमारी लड़की को मारते पीटते प्रताड़ित करते थे। आज सूचना मिली कि उन लोगों ने दहेज की मांग को लेकर के मेरी लड़की को मार पीट कर हत्या कर दिए हैं और उसके शव को मकान के अंदर दफना दिए हैं। बादिनी श्रीमती सफीदुन्निसा के प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम भी आ गई है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को खुदवाकर निकलवाया गया है और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। मुकदमे में नामजद अभियुक्त शमशेर अली, हसीबुल्लाह और खुशबू निसा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत मंदिरों की ज़मीनों का मुकम्मल सर्वे कराए और मुबैना तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को त्रिपुराकुंड्रम पहाड़ी पर वाक़ मंदिर में चिराग रोशन करने की इजाज़त देनी चाहिए। तमिलिसाई सुंदरराजन ने यह भी दावा किया कि साबिक़ा हुकूमत को इसके मुबैना हिंदू मुखालिफ रवैये की वजह से अवाम ने इख्तिदार से बाहर कर दिया। காலம் காலமாக இந்த தமிழ்நாட்டில் தான் கோயில் சொத்துக்கள் சூறையாடப்படுகிறது என்பது நமக்கு மனதிற்கு மிக 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 வேதனையாக இருக்கிறது. கோயில் சொத்துக்கள் அந்த பகுதி மக்களுக்கு பலன் தரும் அளவிற்குத்தான் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் எவ்வளவு பேர் அதை உபயோகித்தாலும் பயன்படுத்தினாலும் நிறைவாக அது கோயிலுக்கானதான். ஆனா நீங்க கரூர்ல இருக்கட்டும், பழனியில இருக்கட்டும், இன்னைக்கு கோயில் சொத்துக்கள் எந்த அளவிற்கு கோயிலுக்கு இல்லாமல் அது சூறையாடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது தான் என்பது நமக்கு மிகுந்த வேதனை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதனால தமிழக அரசு கரூர்ல உள்ள கோயில் நிலங்கள், அது கோயிலுக்கான நிலங்கள், இனாம் நிலங்கள் என்று அதற்கு ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்தி அது இன்னும் தீர விசாரிக்கப்பட வேண்டும். ஆனா எந்த வகையிலும் கோயில் சொத்துக்கள் அபகரிக்கப்படக்கூடாது என்பதில் நாம் எல்லோருமே தெளிவாக இருக்கிறோம்। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।